is a continuation. Like suppose like 1, 2, 3, or it's like 10, 20, 30. So it's a contingency thing, maybe. Okay, fine. Anybody who would like to attempt, what is a contingency? You say ki there is some contingency fund in our organization. You also say that like that sometime. What do you mean by contingent? Okay. So contingency means an event which is going to be in the future. Okay. But then you're not sure कि वो event कैसा होगा क्या होगा. So contingency means a future event, but then it is not predictable. You cannot predict that event. That is why it is called as contingency. So whenever you go to any, whenever you will be handling some accounts in a company, you will also always have a contingency fund, which is always dependent on something unpredictable जो आपको पता नहीं है. अचानक से कोई चीज हो जाती है and then you have to spend that fund from that cash, from that particular amount which is given or kept in your company. ठीक है? Is it okay, Jyoti? Are you able to understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So let's move ahead. I will share directly that slide, which is slide number 2. Give me 1 second. Okay. Till the time the file is opening, I just want to give you a vague idea, or I can say a fair idea. Today is 10th, 11th, 12th. 2 days I'm planning to take the sessions and finish off your unit number 3, so that after Deepavali, when you will come back, we will have 3 units ready. At the same time, we can also we will also be conducting an internal test, and we will be finishing off our unit number 4 also after Diwali. Is that fine with everyone? So we can have 2 sessions, finish off this unit, because it makes no point in leaving the unit half. So tomorrow, Wednesday and Thursday. Yes, Shashank? And tomorrow at 12 o'clock. Yes, 12 to 1 tomorrow Okay. and day after tomorrow. 2 days will take the session. We'll finish off this. In case if we don't require a session day after tomorrow, that is on 12th, I will not take the session. It depends on how much we cover tomorrow. Then in case the 12th session is not required, we will not take the session, and I will just brief you on 12th about your assessments, your evaluation, and our plan of action for the internal test, so that there would be some idea. So I'll try to finish up tomorrow. If everything goes well tomorrow, we will not be taking lecture on 12th. But in case contingency may arise, so we may take a lecture on 12th. ठीक है? So Okay, ma'am. just a second. Are you able to see the screen? Ma'am. Okay, just a second. Now, हाँ दिखाई दे रहा है. Yes, contingency ma'am. theory is visible? Okay, fine. So, contingency theories, leader's effectiveness is contingent upon how his or her leadership style matches to the situation. So, in case some situation may come wherein one of the students said ki ma'am, some situation came in our village and somebody showed his leadership in that particular situation,
and that particular situation his effectiveness was shown. That's why he was a contingent theory में fit होने वाला leader, because that situation came in that manner that his effectiveness was suited to the situation. He was able to take the village out of that problem or XYZ, whatever problem could have happened. So contingency theories, whenever you talk about, the leader's effectiveness is contingent upon how his or her leadership style matches to the situation. Second, the leader must find out what kind of leadership style and situation he or she thrives in. Third point, there is no one best style of leadership as per the Fiedler's contingency model. उनका कहना ऐसा है फीडलर का कि कोई भी एक बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप नहीं होता जो हमने प्रीवियस थेरीज में देखा. सो ही सेज लीडरशिप स्टाइल हमेशा चेंज होता है. अ लीडर इज इफेक्टिव व्हेन हिज और हर स्टाइल ऑफ लीडरशिप फिट्स द सिचुएशन. नाउ देयर आर वेरियस सिचुएशंस, लाइक फॉर एग्जांपल let's say an example of Cadbury, wherein a worm was found in Cadbury chocolate, and now there is a leader who comes up with a good strategy. He brings in Amitabh Bachchan and he says, okay, let's put Amitabh Bachchan in this advertisement and we'll try to again gain the trust of our consumers. Second leader comes and says ki, okay, no, I think we should completely shut down Cadbury as a name, and हम लोग नया name से we will start a Cadbury production, though it would be under the Cadbury banner, but we will completely change the packaging and everything, right? So this might be two leadership thinking, leadership thoughts. Now for example, because we are known to the first situation जहाँ पे Amitabh Bachchan came and he said कि it is all fine, the for example he has shown the exact setup where the Cadbury is produced. So that particular situation was in which the XYZ leader, जिसने भी ये strategy सोची होगी, he became a contingent leader because his style of leadership matched the situation. ठीक है? So this is called as contingency theory. अब contingency theory में first theory is given by Fiedler. The first comprehensive contingency model for leadership is given by Fiedler. The model proposes that the effective leadership and the group performance depends on the proper match between the leadership style and the degree to which the situation can be controlled by the leader. This simply means कि अगर situation leader से control नहीं होगी तो उस particular leadership style को उसको either he should change his leadership style because that is not suited to that particular situation. So the model proposes, I'm reiterating the words, the model proposes the effective leadership and the group performance depends on what? The proper match between the leadership style and the degree to which the situation can be controlled by the leader. Clear? Going ahead, आइडेंटिफाइंग द लीडरशिप स्टाइल. तो कैसे आइडेंटिफाई करना है लीडरशिप का स्टाइल? सबसे पहले द ऑर्गेनाइजेशन विल पिकअप द लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर. एक ऐसा कोवर्कर उन्होंने क्वेश्चनर बनाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, विच मीन्स कि ऐसे कोवर्कर जिसके साथ वो लीडर काम करना नहीं चाहता. फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्लास देयर माइट बी पीपल wherein some people would not like to work with them, or any group assignment given they will come and tell me, ma'am, this is the person जिसके साथ मैं कभी group assignment नहीं करना चाहूँगा. So in a company, assume that you are a leader and a person in your company wherein you would like to have a least preference to work with him. Now this least preferred questionnaire identifies that style, measuring whether a person is a task oriented or a relationship oriented. इस क्वेश्चनर से ये पता चलेगा कि आप जो लीडर हो वो टास्क ओरिएंटेड लीडर हो या रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर हो. द LPC, दैट इज लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर क्वेश्चनर, आस्क द रिस्पोंडेंट्स टू थिंक ऑफ अ कोवर्कर working and rate the person on a scale of 1 to 8 for each of the 16 sets of contrasting adjectives. मतलब एक क्वेश्चनर बनाया गया, उसमें 16 एडजेक्टिव्स डाले गए, मतलब 16
बातें डाली गई जो एक उन लोगों ने एक प्रेफर्ड आई थिंक स्टेटमेंट चुना है कि इसका टाइम पे आना आपको पसंद नहीं है, इसका ड्रेसिंग स्टाइल आपको पसंद नहीं, इसका बात करना आपको पसंद नहीं है, जिस तरीके से डिसीजन लेता है आपको पसंद नहीं है। तो ऐसे 16 एडजेक्टिव्स डाले गए और उसको 1 to 8 के स्केल पे रेट करने के लिए कहा। 1 मतलब सबसे कम, 8 मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है। रिलेशनशिप ओरिएंटेड का मतलब हुआ कि अगर रिस्पोंडेंट डिस्क्राइब्स द पर्सन फेवरेबल इन फेवरेबल टर्म्स, इट इज कॉल्ड एज अ हाई एलपीसी स्कोर। मतलब अगर रिस्पोंडेंट, समझो मैं लीडर हूं और मैंने किसी को बहुत हाई स्कोर दिया है, तो इट डिस्क्राइब्स द पर्सन इन फेवरेबल टर्म्स कि मुझे ये पर्सन काम करने के लिए अच्छा लगेगा, मेरे साथ कोवर्कर ये सूट कर सकता है। टास्क ओरिएंटेड मतलब इफ अ पर्सन डिस्क्राइब्स if a respondent describes the person in unfavorable terms, मतलब ठीक है काम चलाने के लिए इसका सबसे कम एलपीसी स्कोर है जितने भी 16 पैरामीटर्स दिए गए, तो उस लीडर को टास्क ओरिएंटेड लीडर कहा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे फील्डर मॉडल ने और क्या कहा है? फील्डर मॉडल एज्यूम्स एन इंडिविजुअल लीडरशिप स्टाइल इज फिक्स्ड। दिस मीन्स इफ अ सिचुएशन रिक्वायर्स अ टास्क ओरिएंटेड लीडर, ठीक है, अगर किसी सिचुएशन में टास्क ओरिएंटेड लीडर की जरूरत है एंड द पर्सन इन द पोजीशन इज रिलेशनशिप ओरिएंटेड, तो एदर द सिचुएशन शुड बी मॉडिफाइड या लीडर को रिप्लेस कर दो। सीधी सीधी बात है। एक लीडर का स्टाइल है कि जिसको काम करने से मतलब है, उसको रिलेशनशिप से मतलब नहीं, तो वो क्या करेगा? अगर ऐसे लीडर को हम रिलेशनशिप ओरिएंटेड पोजीशन में बिठाएं तो दो चीजें करनी पड़ेगी, या तो सिचुएशन चेंज कर दो या लीडर को रिप्लेस कर दो, क्योंकि वो उसके लिए फिट पोजीशन नहीं है। इज इट अंडरस्टूड और इज इट अ बाउंसर? चेतन, अन्विक्षा, शशांक, इज इट अंडरस्टूड? व्हाट डज इट मीन? Yes, ma'am. इट मीन्स कि एक इंडिविजुअल का लीडरशिप स्टाइल फिक्स होता है, ये उन्होंने एक एजम्पशन किया है। फॉर एग्जाम्पल अमृता का लीडरशिप स्टाइल एक फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अमृता may have a task oriented leader. Shashank as a person may be a relationship oriented leader. Let's assume. तो अगर कोई काम करवाना है जहाँ पे टास्क इज मोर इम्पॉर्टेंट, सिचुएशन डिमांड करती है कि ये काम किसी भी तरीके से हो जाना चाहिए, और वहाँ रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर अगर होगा तो वो काम नहीं हो पाएगा, ऐसा फिडलर का कहना है। तो या तो आप टास्क चेंज कर दो या तो लीडर चेंज कर दो। ठीक है। अब फिडलर ने 3 कंटिंजेंसी या सिचुएशनल डायमेंशंस आइडेंटिफाई किए हैं। क्या आइडेंटिफाई किया है? पहला डायमेंशन है लीडर मेंबर रिलेशंस। मतलब if for example I am a leader and you all people are an employee in my organization, तो हम लोगों के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कैसा है, हम लोगों में ट्रस्ट फैक्टर कैसा है, रिस्पेक्ट में कितना मेंबर्स अपने लीडर को रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये एक फैक्टर उन्होंने कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिचुएशन को डिफाइन करता है। दूसरी बात, टास्क स्ट्रक्चर। टास्क स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि इज द डिग्री टू विच द जॉब असाइनमेंट्स आर प्रोसीजराइज्ड। मतलब कोई अगर काम है, समझ ले लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो उसमें स्टेप वाइज दिया होगा कि दिस इज स्टेप नंबर 1 इस मशीन की तरफ जाइए, फिर स्टेप नंबर 2 इस मशीन की तरफ जाइए, स्टेप नंबर 3 उस मशीन की तरफ जाइए। तो आपका प्रोडक्शन प्रॉपरली होगा क्योंकि टास्क पूरी तरीके से प्रोसीजर्स उसके डिफाइंड है। लेकिन अगर कोई टास्क आता है जिसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया गया, उसको कहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नया ऑर्डर आया है, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है, तो आपका टास्क की जो मशीन्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कस्टमर ने कस्टमाइज करने के लिए कहा है, जिस तरीके से आप प्रोड्यूस करते हो वैसे नहीं चाहिए, उसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मैन्युफैक्चर करना है, तो अनस्ट्रक्चर्ड मेथड हो जाएगी। ठीक है। तो टास्क स्ट्रक्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सिचुएशन को डिफाइन करेगा, ऐसा फिडलर ने कहा है। थर्ड, पोजीशन पावर is the degree of influence a leader has power variables, जैसे हायर करना, किसी को पोजीशन से निकालना, हायरिंग फायरिंग, इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन लाना, प्रमोशंस देना,
सैलरी बढ़ाना। तो ये भी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिचुएशन को डिफाइन करता है। चलो मान लो कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी ऐसे बॉस के अंडर काम कर रहे हो जिसके पास सारे पावर्स हैं, शशांक, लक्ष्मी, चेतन, सारे लोग इनको, तीनों लोग इनको रिपोर्ट करते हैं, तो ये लीडर जैसे कहेगा ये लोग वैसे काम करेंगे, क्योंकि सिचुएशन टोटली पोजीशन उसके हाथ में है। ठीक है, वो आपको हायर कर सकता है, वो आपको फायर कर सकता है, वो आपको डिसिप्लिन सिखा सकता है, वो आपके प्रमोशन भी उस पर डिपेंडेंट है, आपकी सैलरी भी उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फिडलर का ये कहना है कि सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन को कौन सा लीडर चाहिए ये सिचुएशन बताएगी, जो हमारे कंटिंजेंसी लीडरशिप का पहला मेथड है, पहली यू कैन से पहला नियम है। तो सिचुएशन इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, लीडर मेंबर रिलेशनशिप कैसा है, टास्क स्ट्रक्चर कैसा है, और पोजीशन पावर कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिडलर ने एक डायग्राम दिया है कि जहाँ पे मैचिंग द लीडर एंड सिचुएशन। तो अब देखो ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये हमारा टास्क ओरिएंटेड लीडर है जो काम करवाना जानता है, और जो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये वाली फॉलोइंग द एरो, ये हमारा रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर का कर्व है। ठीक है, तो ये कर्व दो बातों से डिफाइन किया है। कैसे? परफॉर्मेंस कम होगा, परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, आपका एक्स एक्सिस देखो, सिचुएशन कैसी है, फेवरेबल है, मॉडरेट है, मतलब आपके कंट्रोल में है, मतलब फेवरेबल, मॉडरेट है मतलब ठीक है कंट्रोल में थोड़ी बहुत है, फेवरेबल मतलब सिचुएशन टोटली आपके हाथ के बाहर है। तो इन कंडीशंस में फिडलर ने कुछ कैटेगरीज बनाए, अब ध्यान से सुनो। लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर और पोजीशन पावर, इन तीनों का उसने ग्राफ बनाया कि लीडर मेंबर पोजीशन कैसी रहेगी। तो उसमें ये कैटेगरी 1 हो गया, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो ऐसा उन्होंने पोजीशन बना दिया। अब इन सब कंडीशंस में फेवरेबल सिचुएशन कब रहेगी, ये देखो, ये जो ग्राफ है रिलेशनशिप ओरिएंटेड ग्राफ, मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस देखो, यहाँ पे कि आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी बढ़ गया, किस लीडर के लिए, रिलेशनशिप लीडर के लिए सॉरी। और टास्क ओरिएंटेड लीडर होगा तो वहां पे एग्जैक्टली आपका परफॉर्मेंस नीचे गिर जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, थोड़ा लॉजिक लगाओ, कोई एग्जाम्पल बता सकता है कि क्यों ये ग्राफ एग्जैक्टली उल्टा है, यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़ गया लेकिन टास्क ओरिएंटेड लीडर के कंडीशन में परफॉर्मेंस नीचे आ गया सिचुएशन के हिसाब से, ऐसा क्यों हुआ? कैन यू थिंक क्यों ये एग्जैक्टली ग्राफ्स परफॉर्मेंस के ऊपर नीचे है? टोटल डिफरेंस है, सोचो शशांक, चेतन, निखिल, ऐसा क्यों हुआ? कैन यू थिंक अबाउट इट कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आया होगा? आपने ओके, यू कैन नॉट डिकोड, जस्ट अ सेकंड, ओके, कैन यू डिकोड कि क्यों ऐसा ग्राफ आया होगा कि एक कंडीशन में ग्राफ काफी ऊपर है और एक कंडीशन में ग्राफ काफी नीचे है? बिकॉज कैन anybody tell me the answer or shall I tell you? ज्योति, शशांक, अन्विक्षा, उमेश, why should the graph go sometimes परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर है और रिलेशनशिप वाले के लिए मैम ग्राफ, यस उमेश बताओ what do you think? मैम कभी अगर आपका ऐसा है कि मैम एक सिचुएशन ऐसी रहती है कि सबसे नीचे आ गई तो उसके बाद वो ऊपर जाती ही जाती है, तो ये एक मेरा मतलब मुझे पता है बस। ओके ठीक है, अभी आप एक ग्राफ देखो, ठीक है, मान लो कि पहले मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट whenever you talk about a whenever you talk about a people's person या एम्प्लॉय ओरिएंटेड पर्सन है तो वो हमेशा पहले अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचेगा, काम के बारे में नहीं सोचेगा। और अगर टास्क ओरिएंटेड पर्सन है
तो वो काम के बारे में ज्यादा सोचता है, बिकॉज उसको ऑर्गेनाइजेशन का काम फिनिश करके देना है इन वॉट एवर रीजन। तो वो ये नहीं देखेगा कि ओके एनी प्रॉब्लम इन उमेश होम, नो इट इज नॉट देयर। तो अगर उमेश के घर में या श्रीनिवास के घर में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है जिसकी वजह से वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो अगर एक पीपल्स पर्सन वहां नहीं होगा जो लोगों के बारे में, अपने एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचता है, तो वो बोलेगा कि नहीं श्रीनिवास, उमेश, आपको ये काम किसी भी लेवल पे जाके करना है, मुझे नहीं पता आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आई एम नॉट केयरिंग अबाउट इट, बिकॉज मुझे मेरे मैनेजर को रिपोर्ट करना है, सो यू ऑल्सो शुड गिव मी द वर्क इन टाइम। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए जब आपको दो एग्जैक्टली अपोजिट ग्राफ दिखाई दिए, सिचुएशन क्या बोलता है? हम लोगों ने सिचुएशन के 3 फैक्टर्स देखे। इफ यू सी हियर, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? एवरीवन, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? उमेश, चेतन, निखिल, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यस यस तो यहाँ पे ये देखो कि हमारी सिचुएशन जो है 3 चीजों पे डिपेंड करती है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर और पोजीशन पावर। जहाँ पे लीडर और मेंबर का रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब ग्रुप के सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में अभी जितने भी लोग हैं 13 लोग हैं, इफ दे रिस्पेक्ट अमृता मैम, तो ये रिलेशनशिप अच्छा है हमारा, हम लोगों में ट्रस्ट फैक्टर है, दे कैन बिलीव कि यस अमृता मैम जो भी सिखाएगी हम लोगों को सोच के सिखाएगी, हमारे हिसाब से मॉडिफाई करके सिखाएगी। टास्क स्ट्रक्चर, हमको पता है कि टास्क स्ट्रक्चर क्या है, हम लोगों को लेक्चर कैसे लेना है आपको पता है, असाइनमेंट कैसे देना है, तो हर चीज स्ट्रक्चर्ड है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हाँ हमको पता नहीं है कि कोई नई चीज आ गई है, तो टास्क स्ट्रक्चर भी ठीक है। पोजीशन पावर, पोजीशन पावर में इन केस फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी सम केसेस वेयर इन सम बॉसेस में हैव एग्जैक्ट पूरा पावर उनके हाथ में होता है कि किसको हायर करना है, किसको मीटिंग में रखना है, किसको स्ट्रैटेजिक मीटिंग में रखना है, किसको प्रमोशन देना है, किसको प्रमोशन नहीं देना है। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन पावर। तो ये कैटेगरी 1 में देखो, आपका जो ये जो कैटेगरी 1 है, इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई काम दिया है तो आपका परफॉर्मेंस ऊपर रह सकता है, बिकॉज ये सब चीजें आपके फेवर में है। लेकिन यहाँ तक ठीक है, जब तक आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो यहाँ तक ठीक है। अब धीरे धीरे देखो कि यहाँ पे रिलेशनशिप, लीडर मेंबर रिलेशनशिप पुअर हो गया, मतलब लोगों को ट्रस्ट नहीं है अपने लीडर पे, ठीक है, लेकिन उसके पास पोजीशन पावर स्ट्रांग है। फिर भी 2 लीडरशिप स्टाइल होंगे। जो पर्सन रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, मतलब जो रिलेशनशिप्स अपने एम्प्लॉयज से निभाना जानता है, उसका परफॉर्मेंस यहाँ से बढ़ जाएगा, बिकॉज वो जानता है कि कैसे मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ और मेरा लोगों से ट्रस्ट भी है। लेकिन जहाँ पे जो पर्सन सिर्फ काम के बारे में सोचता है लेकिन रिलेशनशिप एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचता, वहाँ पे जैसे ही उसका ट्रस्ट रिलेशनशिप नीचे जाने लगता है, जहाँ पे टास्क पता नहीं है, देखो यहाँ से टास्क पता नहीं है हमको क्या करना है, तो उसी पॉइंट से उसका परफॉर्मेंस गिर गया। अब ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई समझने के लिए, ठीक है, तो अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। पहला एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, पहला एग्जाम्पल ये कि जहाँ पे कोई ऐसा काम है कि आपके फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं जो शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं, उनको आपने एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्ड चीज़ें दे दी है कि ये टेबल से ये क्लॉथ ये टेबल पे जाएगा, यहाँ से वो मैन्युफैक्चर होके ये रेडीमेड गारमेंट हमारा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको? टास्क ओरिएंटेड लीडर चाहिए जो ये बताए कि काम कैसे करना है। लेकिन मान लो मेरे पास 2 फैशन डिजाइनर्स हैं जो स्पेशली मेन फैशन डिजाइन कर रहे हैं, ओके, तो अगर मैं उनको बताऊं कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये नहीं करो, आप ऐसे मत करो, जैसा बताया वैसा करो, तो द पीपल हु आर हाईली क्रिएटिव, जहाँ पे भी जॉब में क्रिएटिविटी चाहिए, जहाँ पे जॉब में इंडिविजुअल फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे टास्क ओरिएंटेड मैनेजर नहीं चलेगा। यही फिडलर ने कहा है। अगर मुझे
For example, if I am a person at a doctorate level and somebody comes and tells me कि ऐसे lecture पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, तो at my level probably I don't need that because I've already gained experience and I want to put my own freedom in designing my own session. ठीक है? Second, if there is somebody who's a trainee जिसको कुछ भी पता नहीं है, at that time that person can be told कि lecture कैसे लिया जाता है. ठीक है? तो आपने देखा एक्सपर्टीज लेवल. सिमिलरली साइंटिस्ट, अगर मैं एनसीएल में जाके, या लेट्स टेक अ हायर एग्जांपल, अगर मैं नासा में जाके किसी साइंटिस्ट को बोलूं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा रॉकेट डिजाइन करो, तो am I intruding in his personal, am I intruding in his professionalism? Yes, because at that position टास्क ओरिएंटेड लीडर का काम नहीं चलेगा. उस पोजीशन पे रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है, जो हम लोगों ने उस मूवी में देखा. कौन सी मूवी में देखा? कौन सी मूवी में देखा एग्जाम्पल? हम लोगों ने उस दिन मूवी का एग्जाम्पल देखा था, राइट? यस, मिशन मंगल. यस, तो आपने देखा. यस श्रीनिवास, यू आर सेइंग समथिंग. आप कुछ बोल रहे थे? No, ma'am. Sorry, ma'am. ओके, आई थॉट यू आर सेइंग अबाउट द मूवी. तो हम लोगों ने उस दिन क्लास में ऑनलाइन सेशन में एक मूवी का क्लिपिंग दिखाया था जिसमें अक्षय कुमार इज अ रिलेशनशिप ओरिएंटेड पर्सन who knows how to bind the team, who knows how to move forward with the team. ठीक है? लेकिन अगर कोई लोअर लेवल पे, मान लो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, आप उसको फ्रीडम दे सकते हो कि जैसे बिल्डिंग बनानी है बना दो? नहीं दे सकते, राइट? तो हर वर्क का अपना एक डिमांड है. इसीलिए फिडलर ने क्या कहा है कि जो लीडर है, मान लो कि मेरे पास एक टास्क ओरिएंटेड लीडर है जिसको मैंने बिठा दिया नासा में, और मेरे पास एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है जिसको मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे बिठा दिया. काम चलेगा? ज्योति, अन्विक्षा, काम चल जाएगा? इज इट रियली, वुड इट रियली वर्क? निखिल? निखिल, काम चल जाएगा अगर हम दोनों लीडर्स का पोजीशन चेंज कर दे तो? हेलो, नहीं नहीं मैम, नहीं. नहीं चलेगा, क्योंकि जहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आती है वहां पे आपको थोड़ा फ्रीडम देना पड़ेगा. अभी आप लोग सारे मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स हो, ये एग्जाम्पल आप पे भी अप्लाई होगा. इवन व्हेन आई कैन नॉट टेल द मास्टर लेवल स्टूडेंट कि ऐसे पढ़ाई करो, इधर बैठो, यहाँ मत उठ के जाओ. I can tell it to a KG student, right? So in that level, when I'm dealing with the master's level student, because you're a MCom e-commerce degree holder, you're a master's degree holder, तो I assume कि आपकी creativity है, आपके पास responsibility है, तो I just need to facilitate you the session कि ऐसे पढ़ाना, ऐसे आपको ये session के बारे में मैं knowledge दे दूंगी, और rest of the things you would easily carry on. But I cannot do this with the KG students. So there is a difference between task oriented leader and the other leader, which is the relationship oriented. ठीक है? तो फिडलर की थ्योरी आई होप समझ में आ गई. शशांक, वैभव, श्रीनिवास, सुकराम, any doubt? Can I move ahead? Yes, ma'am. Yes? Okay. Yeah, you can mute yourself. Fine. So I will go ahead with that. Now what Fiddler said. अब देखो, जहाँ पे यहाँ पे ये ग्राफ नीचे आ गया क्योंकि ये टास्क ओरिएंटेड लीडर था, और जब टास्क स्ट्रक्चर और ये सिचुएशंस चेंज हो जाती है तो टास्क ओरिएंटेड लीडर हर जगह काम नहीं कर सकता. रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर भी हर जगह काम नहीं कर सकता. इसीलिए फिडलर ने कहा है कि टास्क ओरिएंटेड लीडर को टास्क के जगह प्लेस करना चाहिए और रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर को रिलेशनशिप्स के जगह पुट करना चाहिए जहां पे उसकी ज़रूरत हो. या तो फिर आप टास्क टोटली चेंज कर दो अगर आपके पास गलत तरीके का लीडर है. इसीलिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपने देखा होगा कि जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ओनली दिस प्रॉब्लम कि वो लोग टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर को
एक्सचेंज पोजीशन पे बिठा देते। नाउ व्हाट फिडलर सेड, फिडलर कंक्लूडेड that the task oriented leadership would be ideal for favorable and unfavorable situation। जहां पे फेवरेबल सिचुएशन है, देखो यहाँ पे फेवरेबल सिचुएशन है तो टास्क ओरिएंटेड लीडर काम आया, गुड है परफॉर्मेंस। और जहाँ पे अनफेवरेबल सिचुएशन है, जहाँ किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, वहां पे भी टास्क ओरिएंटेड लीडर काम आया, क्योंकि टास्क ओरिएंटेड लीडर ये बताएगा कि अनफेवरेबल सिचुएशन में, कोविड जैसे सिचुएशन में क्या करना है। लेकिन जहाँ पे फेवरेबल सिचुएशन है, जो हमको पता है कि नॉर्मली मार्केट चल रहा है, सबकी हमारी कंपनी अच्छे मार्केट शेयर ले रही है, वहाँ पे लीडर मेंबरशिप रिलेशनशिप अच्छा होगा। जब टास्क स्ट्रक्चर होगा और पोजीशन पावर स्ट्रांग होगी, तब टास्क ओरिएंटेड लीडर इफेक्टिव होगा फेवरेबल सिचुएशन में, ठीक है। और जब अनफेवरेबल सिचुएशन आएगी, जहाँ लीडर मेंबर रिलेशनशिप पुअर है, मतलब हो सकता है कि एम्प्लॉयज इतना लीडर को ट्रस्ट नहीं करते हैं, टास्क अनस्ट्रक्चर्ड है, हमको पता नहीं है कि क्या करना है, और पोजीशन पावर भी वीक है, मतलब मैनेजर के पास आपको हायर फायर करने के, आपको प्रमोशन देने के नहीं है, उस समय भी टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप काम आएगी। इसीलिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे ऐसे सिचुएशंस जब आते हैं फेवरेबल या अनफेवरेबल, उस समय टास्क ओरिएंटेड लीडर ही काम कर सकता है। लेकिन जब सिचुएशन मॉडरेटली फेवरेबल से अनफेवरेबल होती है, तब ह्यूमन रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर काम आते हैं। देखो यहाँ पे कहाँ उसका ग्राफ हाई है ह्यूमन रिलेशनशिप पर्सन का, जहाँ पे थोड़ा फेवरेबल से स्लाइटली अनफेवरेबल की तरफ जा रहे, तब उसका कर्व सबसे हाई है, ठीक है। ग्राफ पढ़ना अगर हमें थोड़ा बहुत आता है तो हम लोग ये समझ सकते हैं। तो ये फिडलर की थ्योरी थी। अब फिडलर की थ्योरी में क्रिटिसिज्म क्या है कि ये मॉडल काफी सिंपल है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये किया गया कि आपने जो क्वेश्चनर बनाया, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर का क्वेश्चनर, वो एक पर्सन की पर्सनालिटी को मेजर करता है कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है, क्या मैं लोगों के साथ आसानी से घुल मिल सकती हूँ, या मैं लीडरशिप ऑटोक्रेटिक हिटलर स्टाइल हूँ, ठीक है। तो ये बताता है। क्रिटिसिज्म किया गया थ्योरी का, क्योंकि हर जो थ्योरी आती है उसके बाद देयर आर पीपल हु डिस्कवर अ न्यू थ्योरी, तो इस वजह से इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया। डू नॉट ऑलवेज रीच कन्वेंशनल लेवल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, मतलब स्टैटिस्टिक्स अगर देखा जाए तो दिस थ्योरी में नॉट रीच टू अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। कोरिलेशन काफी वीक है, कोरिलेशन इज वीक बिकॉज जो हम लोगों ने दो चीजों को कंपेयर किया है, परफॉर्मेंस और सिचुएशन, ये प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाते कई बार। तो फिडलर की थ्योरी को ये कहा गया कि आपने जो दो पैरामीटर्स लिए, परफॉर्मेंस और सिचुएशन, ये हमेशा आपको कंक्लूजन्स या डिसीजन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। क्लियर? एनी डाउट इन दिस थ्योरी बिफोर आई मूव हेड? एनीवन? प्लीज लेट मी नो if there is any doubt in the theory. Kunal, any doubt? सुकराम, कोई डाउट है थ्योरी में? शशांक, is it clear? हाँ मैम। Okay. यस मैम। Okay, chal. Then we will move to the next one. Yeah, the next theory is situational leadership theory. Kindly mute yourself, please. There's a lot of disturbance coming in. Okay, situational leadership theory. Situational leadership theory is also called as Hershey-Blanchard situational leadership theory, because in दोनों लोगों ने ही, these two people have made this theory. It is developed by Dr. Paul Hershey, who is an author of Situational Leader, and Kenneth Blanchard, who is an author of 1 Minute Manager. तो ये एक बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, इनकेस आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हो। केनेथ ब्लैंकार्ड ने ये बुक लिखी है 1 Minute Manager, एंड पॉल हर्सी ने ये बुक लिखी है सिचुएशनल लीडर। तो इनका कहना यह है कि सक्सेसफुल लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन सिलेक्टिंग द राइट लीडरशिप स्टाइल कंटिंजेंट ऑन द फॉलोअर्स रेडीनेस।
तो फॉलोअर्स आर विलिंग एंड एबल टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क. फॉलोअर का जो रेडीनेस है उस हिसाब से लीडरशिप स्टाइल चूज करनी चाहिए. तो द थ्योरी बिल्ड्स ऑन द लॉजिक दैट द लीडर्स कैन कॉम्पेंसेट फॉर द लिमिटेड एबिलिटी एंड मोटिवेशन. तो थ्योरी ने 4 लीडरशिप स्टाइल बताए हैं और 4 फॉलोअर स्टाइल बताए हैं. सी लीडरशिप स्टाइल क्या है? वन इज टेलिंग, जिसमें गिविंग S1 टेलिंग, गिविंग क्लियर एंड स्पेसिफिक डायरेक्शंस व्हाट एंड हाउ टू डू. टोटली लीडर बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है. सेलिंग, इट इज अ बैलेंस बिटवीन टास्क ओरिएंटेशन एंड पीपल ओरिएंटेशन. मतलब थोड़ा बहुत लोगों को भी कंसिडरेशन दिया जाता है और टास्क को भी कंसिडरेशन दिया जाता है. इट इज अ मिडिल पाथ, इट इज अ ब्रिज बिटवीन टास्क एंड पीपल ओरिएंटेशन. पार्टिसिपेटिंग, यहाँ पे लोगों का इंटेलेक्चुअल थोड़ा बढ़ जाएगा. जो लोग थोड़े क्रिएटिव हैं तो यहाँ पे सपोर्टिव और पार्टिसिपेटिव स्टाइल काम आएगा. सपोर्टिव एंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल which allows the member to take a more active role in coming up with the ideas and decision. जैसे साहिल की कंपनी में या कोई और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके कंपनीज में जहाँ पे लोगों का ओपिनियन काउंट होता है. So in case if tomorrow there is a new program being organized for all of you people and if the owner of the organization asks all of you people to give your suggestions, that is a participative style. ठीक है. तो जहाँ पे सपोर्टिव और पार्टिसिपेटिव स्टाइल काम आएगा, आपका लीडर सपोर्ट करता है और आपको पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करता है. फोर्थ पॉइंट, फ्री रेन. इस पर्टिकुलर स्टाइल में, डेलीगेटिंग स्टाइल में, आपके ग्रुप मेंबर्स हाईली इंटेलेक्चुअल होंगे. स्ट्रक्चर के बारे में, टास्क के बारे में काफी कुछ पता होगा. तो ग्रुप मेंबर्स टेंड टू मेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस एंड टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे मिशन मंगल मूवी में पूरे ग्रुप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी कि आपको ये दिया है एंड वी बिलीव ऑन यू, तो आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए और टास्क को कंप्लीट कीजिए. ठीक है. तो ये 4 लीडरशिप स्टाइल्स हो गए. अब मैच्योरिटी लेवल, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय का मैच्योरिटी लेवल अलग तरीके का होता है, इसीलिए हर्षी और ब्लैंकार्ड ने फॉलोअर्स के भी स्टाइल्स बनाए. M1 मतलब अनेबल एंड अनविलिंग. मेंबर्स लैक द नॉलेज, स्किल एंड विलिंगनेस. फॉर एग्जाम्पल, काफी लोगों ने ये देखा होगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फार्म्स? हाउ मेनी ऑफ यू हैव फार्म्स? किसके पास फार्म है? Okay, so have you seen the people who work in your farms? Most of the time they are very unwilling. They have a kind, so उनको आपको बताना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर काम इतने दिन में होना चाहिए. तो either you give them, sorry, okay, so when you talk about this style wherein the people are unable and unwilling, that means the members lack the knowledge, skill and willingness. तो इस पर्टिकुलर M1 स्टाइल के लिए आपको S1 स्टाइल का लीडर चाहिए जो क्लियर स्पेसिफिकेशंस दे, क्या कैसे करना है अच्छी तरीके से बताए. सेकंड, अनेबल बट विलिंग, मतलब एंथुसियाज्म तो है आपके एम्प्लॉय में लेकिन एबिलिटी नहीं है. ठीक है. तो M2 के लिए ऐसा लीडर चाहिए जो टास्क ओरिएंटेशन और पीपल ओरिएंटेशन दोनों को बैलेंस कर सके. थर्ड, M3, एबल बट अनविलिंग. मेंबर्स हैव द स्किल, capability to complete the task but are unwilling to take the responsibility. I will make you remember one character in the movie of Mission Mangal, the old guy, wherein he says कि अभी तो उम्र हमारा 50 का हो गया है, we have crossed 55, we have crossed 60, I'm coming to retirement. So these are the people who are unwilling to take the responsibility in that movie. तो इस particular situation में अक्षय कुमार का सपोर्टिव और पार्टिसिपेटिव स्टाइल काम आया. ओके, wherein he is supporting the person, he is saying how much energy you have got on your face. चेहरे पे क्या च्यवनप्राश लगाते हो क्या सुबह सुबह? You remember that dialogue which we have seen in the movie. I'm just telling you, reason being you can associate the things with an example. M4,
These are the people who are highly skilled and willing to complete the task. इनको ना आपको मोटिवेट करना है ना कुछ सिखाना है, तो टोटली फ्री रेंज स्टाइल, इनको सिर्फ काम दे के आपको चले जाना है, बिकॉज वो खुद मोटिवेटेड भी है, वो काम करना भी जानते हैं. तो अब ये मैच्योरिटी लेवल और लीडरशिप स्टाइल मैच हुआ. ठीक है, डन, क्लियर एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर. यस मैम. कोई डाउट है? डिफिकल्ट नो है? मैम. डिफिकल्ट है? सुकराम, अन्विक्षा, उमेश, वाज द टॉपिक वेरी डिफिकल्ट? yes ma'am. Was the topic very difficult? No, ma'am, it's not that difficult. Kind of madam, kind of. Okay. The only thing what I would like to tell you is, Okay ma'am. just a second. The only thing what I would like to tell you is, there are so many theories in this unit. So I want you to read the theories so that you can gain an understanding. Okay. So I am going to forward you the notes on 12th. आपके असाइनमेंट के लिए जो आपको पर्टिकुलर चार्ट चाहिए था वो आपके असाइनमेंट में ही पेस्टेड है. यू कैन गो टू टीम्स, व्हेन यू रीड द एंटायर असाइनमेंट, दैट चार्ट इज देयर इन योर टीम्स. So I don't want to burden you with extra literature. So you can just go to Teams and refer your assignment for solving. After we finish this unit, I will give you the notes of the entire unit. ठीक है, शशांक? Is that okay? Okay. Fine. So let me just revise the things quickly for you in next 5 minutes and we can end the session. Okay, so we have seen the contingency theories. We have first seen the leader's effectiveness is dependent upon how his or her leadership matches the situation. तो contingency theory जो फिडलर ने दी है उसका कहना यह है कि there is no best style for leadership. Second, the first comprehensive contingency model was given by Fiedler. The model proposes, very important, the model proposes effective leadership and group performance depends upon the proper match between leadership style and the degree to which the situation can be controlled by the leader. इसके लिए इन्होंने एक लीस्ट प्रेफर्ड क्वेश्चनेयर बनाया, wherein अगर लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर क्वेश्चनेयर में एक आप लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर को अगर आप हाई स्कोर देते हो, दैट मीन्स आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड एम्प्लॉयर हो. अगर आप लेस स्कोर देते हो, दैट मीन्स यू आर अ टास्क ओरिएंटेड पर्सन. नाउ द सिचुएशन डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स: लीडर मेंबर रिलेशनशिप, degree of confidence the team members have with the leader, the trust and respect, task structure, task कितना structured है, unstructured है, position and power, which means the degree of influence such as आपके पास hiring के powers है, firing, discipline, promotion, salary increase. So that will describe the third situation. Even if you don't draw this diagram, it's fine with me. I just wanted you to understand. So in case if some people have confusion over this diagram, fine, you can leave this diagram, not an issue. अगर समझ गया है तो well and good. Now, Fiedler concluded that the task-oriented leadership would be ideal for favorable and unfavorable situation. And फेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशन में क्या होगा ये उन्होंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे. लेकिन जब सिचुएशन मॉडरेट होगी तो ह्यूमन रिलेशंस ओरिएंटेड मैनेजर वुड बी इफेक्टिव. तो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस 2 लाइन्स. Yes, any doubt, anyone? The next one, Fiedler model criticism. It is too simple. LPC scale personality measure करता है rather than leadership style. It always says that it does not reach the conventional level of statistics and the correlation is quite weak. Coming to situation leadership style में हमने 4 style, S1, S2, S3, S4. So you have to remember this
You can just make a short form TSPD. So telling, selling, participating, delegating, and M1, M2, M3, M4. So here you can just remember this table, which maturity level has which kind of leadership. So I think we should stop here, and tomorrow we can take the path goal leadership theory, LMX theory, and the other modern theories. Is that fine? If there is any doubt, please let me know about your doubts. No, ma'am. Okay. Okay, one more thing. We would be completing, for the people who have joined late, we would be taking, I would be giving you the third assessment, which would be an open book assessment. Okay? So I will be giving you time to finish off the third evaluation. But the test, internal test जिसकी मैं बात कर रही हूँ, I would be taking it after Diwali. And I would be completing the fourth unit also after Diwali. I just need your support for two things. Finish up your assignments in time. The students, आपके friends जिन लोगों ने assignment नहीं submit किया है, please ask them to submit both the assignments. And Wednesday and Thursday, that means 11th and 12th, we are going to finish off the unit number 3. Okay? Any doubt, anyone? If it is not there, we can call it a day. We can finish the session for today. Okay? Fine. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Yeah. Umesh, I want you to attend more lectures, okay? So that your attendance gets improved. Bye, ma'am. Yeah, bye. Take care. Thank you, everyone. Just be there for next 2 sessions and we can finish up the syllabus, okay?